Uh, Now, on the name of Kartapurukh, I would like to invite Sri Kamaljeet Bhai ji to present a bhajan with her divine voice. Kamaljeet Bhai ji, है क्या? Hello. हेलो हाँ सर, प्लीज आप भजन सुनाइए। सर, सबको नमस्कार। सबसे पहले और गुरु नानक जी के 551 में प्रकाश पर्व की सबको बधाई जी। सर, मैं एक छोटा सा भजन गुनगुनाना चाहता हूँ जिसको हम बोलते हैं मूल मंत्र साहिब का पाठ, जिसको बोला जाता है 5 पौड़ियों का पाठ। तो सर स्टार्ट करते हैं सर। स्वागत है। सतनाम जी सर। सतनाम वाहेगुरु से स्टार्ट करते हैं सर। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेभंग गौर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होती भी सच। सर इसको हम 5 बार रिपीट करते हैं। इसको बोला जाता है 5 पौड़ियों का पाठ। तो सेम हमें रिपीट करना है सर। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेभंग गौर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेभंग गौर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होती भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेभंग गौर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होती भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सर इसको हम, जैसे आप गायत्री मंत्र कहते हैं, इसको हम मूल मंत्र साहिब कहते हैं। सिख धर्म में कोई भी पाठ हो, निशान हो, कोई उसके पीछे साहब जरूर लगता है। बिल्कुल। जैसे आपने गुरुद्वारे में देखा होगा जी, बहुत बड़ा फ्लैग लगा होता है, ऑनेस्ट वो निशान साहब कहते हैं उसको हम। सर आपको एक बार फिर से बधाई 551 में प्रकाश पुरब की, जो गुरु नानक देव जी का आज हम मना रहे हैं बहुत ही खुशियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद कमलजीत जी आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। नाउ आई एम और इनवाइटिंग मैं आपके योग सभा, शाश्वत योग सभा का थैंकफुल हूँ जी, टू बी ऑनर। आपने मेरे को ये बहुत खुशियों के टाइम पे आपने ऐसा डिसीजन दिया कि मैं आपको कुछ 2 शब्द कह के बोल सकूं जी। थैंक यू सर। जी चेतन जी आगे बढ़िए। Now I am inviting our eloquent speaker to deliver his lecture on the topic Impact of Guru Nanak Dev Ji on our cultural and spiritual life. Sir, please speak in bilingual ways of Hindi and English for the sake of our audience, sir. Sir, please start. सर आप म्यूट में चले गए हैं। Sir. Abhi, is it all right? Yes, Yes, sir. sir. Please start. Hello. Should I begin now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you so much. Ganga Tarangaramani Jata Kalapam Gauri Nirantar Vibhushit Bama Bhage Narayana Priyat Matang Madapaharam Varanasi Purpatim भज विश्वनाथम। वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु की फतह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।
I'm so much delighted, really, because I have been associated with several functions and conversations, conferences in the Punjabi University, Patiala, and Guru Nanak Dev University, Amritsar. And I have many friends, Sikh friends, professors, who have been my close friends, and that's why I could have learned a little bit about Sikhism. Uh, in the beginning, I should say that I am so much delighted, really, to be associated with this Sabha, and thanks to Mr. Chetanji, who has been a very boon to me because of giving this opportunity to be here and speak a little bit of my own experiences and own understanding, because I have crossed 75. Still, I can remember some of them, so I will share with you all present here and viewers. Thank you so much. So, ladies and gentlemen, before beginning Guru Nanak's contribution for the world culture, I should say that really it is a unique religion. Sikhism, the founder of which is known as Guru Nanak Dev Ji Maharaj, Guru Nanak Dev Sahab, as I have been told, because it is engaged in the sense historically and geographically. Because if we try to listen about Sikhism and the history of Sikhism, so we have to go back to the previous world religions which were prevailed in the world, in the universe, in nations, in the countries. And for that, I should begin that as a student of philosophy of religion, we classify the religions of the world in three parts, in three ways. First, the Semitic religion. Second, the religions of India, Eastern religion, and the religions of the Far East. So, among the Semitic religions, we find Judaism, Christianity, and Islam. But before, how these religions, these are the organized religion. This is known as organized संस्थागत धर्म के रूप में ये माने जाते हैं. इनकी एक संस्था है, एक विरासत है इनके पास. तो these organized religions began, developed, so to say, because of the polytheistic views of Greek citizens, Greek thinkers, Greek believers in the Almighty, in the divinity. So, in order to improve those polytheistic worshipping, the Semitic religions began a monotheistic type of religion, a monotheism. And among them also, it is believed by the Semitic religions that the prophets, the divine, the God, Almighty, sent someone on this earth for the welfare of mankind, to remove the suffering, the lacunas, and the imperfections, the ignorance, in many several ways. So, Judaism began with the prophet Yahweh, as it is known, and on the Mount Sinai, he gathered all Jews and proclaimed that he is the Lord of all people. He will help and remove the suffering. Now, in this way, Judaism began. I should not go in detail, but I'll just give the names and some of few words about these religions. So, but later on, it is as it happens with our religions. Judaism became a tool to the emperors, the rulers. The kings proclaimed themselves that he is the prophet, he is sent by Lord, and he is the God of all the Jews. So this
perverted all the Jews into some of the misleadings, misdeeds. Therefore, human being were got a lot of suffering in several ways. You see, we know that Jerusalem is of Jews and Christians. In those days, uh, annual celebrations were taking place in Jerusalem, holy place. And there, Jesus used to attend that, but he believed, he found that let me change this idea. So he started teaching something other. God, the Christ is our God, Jesus is our God, not we, not anyone other prophet. In this way, Christianity developed, and Islamic tradition began because of they found that God as Allah, and the Muhammad is the last prophet in that scenario, in that scheme. So these developed gradually. Even in Islam, new kind of a movement started, Baha'ism, by Baha'u'llah. Now let us come to this, our religions of the India, Eastern religion. Here we find that भारतीय धर्म आरंभिक अवस्थानिज्म के रूप में आया था, और यह ब्राह्मणिज्म जिसको हम कई नाम जानते हैं, जैसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये एक्चुअली है क्या? तो हम ये पाते हैं कि जो ब्राह्मणिज्म का जो स्रोत है, हिंदू धर्म का जो मूल स्रोत है वेद, उसमें ऋषियों के जो सेल्फ रेवलेशंस थे, वो धीरे धीरे परिपक्व होकर के, मैच्योर्ड होकर के, ये बातें ऋषियों के माध्यम से हम लोगों के सामने आते हैं कि ट्रुथ एक ऐसी चीज है, सत्य, ट्रुथ इस ऑर्डनरी सेंस में नहीं, वर्ल्डली सेंस में नहीं, बल्कि ट्रुथ इन नॉट इन एनी फॉर्म, नॉट एनी, बट निराकार, निर्गुण, निर्गुण सत्य. This Satya, Trith, these are the two elements, these are the 2 points, these are the 2 jewels, I can say, that they realized that these are the only things, that the whole world is moving because of Rith and Truth, Rith and Satya. And Rith means the worldly order, cosmic law, which manages the whole affairs of the world, and Truth is lies outside. So we have to, one is to approach towards this truth by the way of practicing, following the Rita, and this Rita later on came to known as Dharma. Dharma as a law, Dharma as a karma, Dharma as a virtue, Dharma as morality, Dharma as an experience, realization. These are the things in which we define Hinduism or Sanatan Dharma. Side by side, in Indian religions, Buddhism and Jainism also took develop very richly. Jainism was earlier than Buddhism, and all the Tirthankaras, they could teach whatever they could realize by the way of their tapa. And in Buddha, when Buddha came on earth, he found that in Sanatan Dharma there are certain things that has to be removed, that has to be get rid of. So he found that truth is only of the 4 kinds. 4 आर्य सत्य जिसको हम लोग कहते हैं. दुख है, दुख का कारण है, दुख समुदय है, दुख समुदय के मार्ग हैं. इस तरह बुद्धम का भी विकास हुआ, और काफी भारत में ही नहीं बल्कि और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द लैंड गया. तो ये हो गया इन ईस्टर्न रिलीजन के बारे में बात. और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि
बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ साथ हमारे यहाँ भारत में योग की परंपरा, बौद्धों में भी योग की परंपरा वज्रयान के रूप में, सनातन धर्मियों में भी हठ योग के माध्यम से यह एक ऐसी साधना पद्धति हिंदू धर्म के रूप में विकसित हो रही है जो जिनके आदर्शों को, आइडियल्स को फॉलो करके मनुष्य अपने जीवन का को पवित्र बना सकता है, डेवलप कर सकता है, व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और एक समाज में एक सुव्यवस्थित समायोजित व्यवस्था वो स्थापित कर सकता है। तो इस तरह से ईस्टर्न रिलीजन के बारे में हो गया। अब हम अगर फार ईस्टर्न रिलीजन के बारे में थोड़ी सी एक दो लाइन बता दूं कि ये ताओइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म, जैन बुद्धिज्म, अमिताभिज्म, ये सारे धर्म जो है चाइना से शुरू होकर के उधर जापान तक जाते हैं धीरे धीरे, और बुद्धिज्म का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। बुद्धिज्म चाइना में भी गया, जापान में भी गया, कोरिया में भी गया, थाईलैंड में गया, बर्मा में गया, और इस तरह से अमलगमेट हो गया, उनके साथ मिलजुल गया। कन्फ्यूशनिज्म के साथ साथ बुद्धिज्म इतने अधिक मिल गया कि वहाँ बुद्धिज्म और कन्फ्यूशनिज्म में क्या फर्क है ये आसानी से नहीं बताया जा सकता है। तो इस तरह से धर्मों के इतिहास में हम इन धर्मों को पाते हैं। भारतीय धर्म में मैंने एक बात छोड़ दिया था जिसकी चर्चा मुझे विशेष रूप से आज करनी है, वो है सिखिज्म। सिखिज्म वास्तव में बहुत एक अच्छे समय में गुरु नानक देव जी का प्राकट्य हुआ। हम उसको डिवाइन रेवलेशन मानते हैं कि गुरु का रेवलेशन हुआ एक अवतार के रूप में। जैसा कि हम सब लोग गीता में पढ़ते हैं, जानते हैं कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता जाता है, अत्याचार अनाचार बढ़ता जाता है, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है, किसी भी रूप में। तो उन्होंने 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव को प्रकट होने का अनुमति दिया संभवतः, और गुरु नानक देव एक ऐसे समय में आए जब ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे संसार में लोग अपना व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने केवल तलवंडी तक ही अपने को सीमित नहीं रखा। जैसा कि बताया गया आरंभ में कि तलवंडी पाकिस्तान में है और फिर वो यहाँ हमारे पंजाब में ज़्यादा प्रमुख रूप से उनका विकास हुआ। वो अफगानिस्तान, ईरान, इराक से लेकर के तमाम देशों की यात्राएं की। He traveled a lot, and through this traveling, he got contacts with so many saints, mystics, and spiritual personalities, and all he learned, he could learn, he could adopt the learnings whatever he found from these saints and divine personalities. Even from Islam, he could understand many things. From Christians, he could learn a lot. Therefore, he paved a way for the people to be away from the rituals, the external forms of the practicing religion of Brahminic tradition, and to adopt a simple form. So he opened a simple form of religion, and which he called Guru Vani, Guru Vachan. Text of Sikhism is Sri Guru Granth Sahib, and in Sri Guru Granth Sahib it is not the names of the Guru Nanak. Guru Nanak is there, but it contains names of the Rama, Sandy, and many other saints through their bhajan, through their getting out of their heart. The whole Guru Granth Sahib was compiled by Guru Gobind Singh Sahib, the 10th Guru of Guru Nanak Dev, Amar Das, and then Guru Gobind Singh Sahib. So in this way we find that Sikhism, as a youngest religion in the world, has got the approval of several people, and through them we can find that this is one kind of universal religion in the world. Buddhism is now at present moment
is being recognized as a universal religion because it has all the aspects of the different organized religions, different prophetic religions, and different the Brahmanic tradition, and all the sayings of the spiritual personalities which he could learn from the mystics and the Sufis from different in different ways. Now, the aspects of the different organized religions, different prophetic religions, and different the Brahmanic tradition. Please repeat it again. Repeat it again, please. Hello. Hello. Nothing, sir. उन्होंने Sir, it you was just continue, a sir. echo. Somebody has unmuted himself. You continue, sir, please. No. I will just reply. I will love. I would love No, sir. to reply the No questions. query. No query at this moment. You just continue. It was just echo kind of, or some kind of Acha. technical. Okay. So let me say something about the Sikhism, which I wanted to speak to you at this moment. The Prakatotsav Mahotsav, the birth um, ceremony of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. So let me say something in India also, because of the it should be the bilingual ना. तो गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक के रूप में हमारे सामने विद्यमान है. उनके प्राकट्य महोत्सव को मनाना हम परम गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति का रूप है. और इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने समझा उसको कैसे जनमानस तक पहुंचाया जाए, कैसे दो विरोधी बातों को कैसे सुलझाया जा सके. क्योंकि उनके समय में जब वो इसमें यहाँ अपने विचारों को व्यक्त करना चाह रहे थे तो भारत में दो प्रमुख धाराएं थी. एक तो ब्राह्मणिज्म था ही, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, और दूसरा इस्लाम. इस्लाम के मानने वाले जो शासक वर्ग थे, इस्लाम के मानने वाले और इस्लाम के मानने वाले शासक, मैं दो रूपों में देखना चाहता हूं. शासकों ने इस्लाम को अपने किस तरह से उपयोग किया, कि सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया, कि उससे बड़ी अराजकता देश में फैली, जनता में, जनमानस में. और इस तरह से गुरु नानक देव ने उस बातों को सोच करके भाई ये समझाने की कोशिश की कि देखो, हम विविधताओं को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का विरोध, एक दूसरे के ऊपर आतंक, यहाँ तक कि नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत ऐसे शासक हुए जिन्होंने बहुत अत्याचार किए हमारे ये हिंदू मतावलंबियों के ऊपर. लेकिन यही कारण था, संभवतः यही कारण था कि गुरु नानक देव का जो प्राकट्य था वो फलीभूत हुआ और सफल हुआ. और उन्होंने हमें एक ऐसा संदेश दिया कि हम संसार में एक सुखी और कल्याणकारी जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं. तो उन्होंने कुछ बातें बताई, कुछ सिद्धांत मैं कहना चाह रहा हूँ. जैसे कि भजन में बताया गया कि गुरु ईश्वर के बारे में अगर चर्चा करते हैं, ईश्वर है कौन, तो उन्होंने कहा भाई ईश्वर तो केवल एक ओंकार है. देखिए ओम शब्द जो है, जैसा कि भजन में भी कहा, गायत्री, ये सब वहां भी है, और गुरु नानक भी एक ओंकार कहते हैं. वह अ उ म तीन शब्द हैं जिनको जो कि स्पिरिचुअल ट्रूथ से संबंधित हैं, आध्यात्मिक सत्यों से के तीन रूप हैं, अ उ म, और वो तीनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक है. ये सिख धर्म की बड़ी भारी विशेषता रही है, बहुत हम लोग को बहुत प्रभावित करती है कि ये तीनों मिल करके एक ही है, अलग अलग नहीं है. एक ओंकार, कर्ता पुरुष, वही कर्ता पुरुष है. वही जैसे भजन में आपको सुनाया गया कि कैसे वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम कैसे उसके साथ जुड़े हुए हैं, इस रूप में उसकी प्रार्थना करते हैं. 5 बार जो उन्होंने बताया उसकी चर्चा हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे. तो इस तरह से
यह सतनाम जो गुरु ग्रंथ साहिब का दिया हुआ मंत्र है, यह उन जीवों के लिए है, उन मनुष्यों के लिए है। मनुष्यों को तो नहीं, सबके लिए कह सकते हैं। और मनुष्य चूंकि प्रबुद्ध है, उसके लिए ज्यादा उपयोगी होना चाहिए, क्योंकि वह सभी जीवों पर अपना आधिपत्य जमा रहा है या जमाना चाहता है, जमाता आ रहा है। इसलिए मनुष्य को उन्होंने बताया कि देखिए, दो तरह के जीव होते हैं। ये बड़ी भारी चीज बताई गुरु साहब ने कि एक वह जीव होता है, या वह मनुष्य होता है जो मनमुख होता है, और दूसरा है गुरमुख। ये दो तरह के मनुष्य हैं, जीव हैं, मनमुख और गुरमुख। बहुत अच्छी व्याख्या उन्होंने की है कि ये मनमुख क्या होता है। मनमुख माने जब मनुष्य अपने ऊपर स्वयं अपना आधिपत्य जमा लेता है, अपने मन के आधिपत्य को जमा लेता है कि मैं जो हूं मैं ही हूं, मैं के अलावा कोई दूसरा नहीं है। और वह सभी कार्य, सभी व्यवहार, जगत के जितने व्यवहार हैं, वह आत्म केंद्रित रूप से होकर के करता है, स्वार्थ की भावना से युक्त होकर के करता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। इसलिए वह मनमुख कहलाता है, अपने मन के अनुसार काम करने वाला। और मनोविज्ञान हमें बताता है कि किस तरह से कितना चंचल होता है, कितने रूपों में उसका चलन गति होती है। तो अगर केवल मनमुख रूप में रहा जाए तो संसार में सुव्यवस्था नहीं हो सकती, सुनियोजित समाज का विकास नहीं हो सकता। सुनियोजित विकास के लिए हमें एक विधान चाहिए, जिसकी चर्चा हमने बताई थी हिंदू धर्म से। रित, एक लॉ, एक विधान, जिसको कि धर्म शब्द का नाम दिया गया है। वहां पर हिंदू धर्म में थोड़ा एक सेंटेंस आपको बता दूं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य निमित्तम पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, और धर्मे नहीना पशुभिर नरः पशुभिर समाना। सभी, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, सब में ये सब समान होते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, ये सारे। लेकिन मनुष्य में एक ऐसी विशेष चीज है जो पशुओं से उसको अलग करती है, एनिमैलिटी से ह्यूमननेस की ओर बढ़ाती है। ये ह्यूमननेस की ओर क्या ले जाता है, कौन सा तत्व? वो है धर्म। और धर्म है क्या? धर्म और ऐसा कुछ नहीं है, केवल पूजा पद्धति नहीं है, केवल कर्मकांड ही नहीं है, केवल मंदिर मस्जिद आदि स्थानों पर जाकर के बैठ करके उनका सुनना, ये इतना ही तक धर्म सीमित नहीं है। यह तो भजन है, तीर्थ स्थानों में जाना, मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, जितने भी पूजा स्थल हैं उनको, उनकी विजिट करना, उनको देखना, यह तो एक व्यवस्था है जरूर। लेकिन धर्म इससे भी और बड़ा है। धर्म वो है जो हमें चलना सिखाता है, हमें बोलना सिखाता है, हमारे व्यवहार को एक व्यवस्थित रूप देता है। और यहाँ तो बताया गया है कई तरह से कि धर्म केवल व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए नहीं है, बल्कि नैसर्गिक अलौकिक उपलब्धि के लिए भी होता है। हम संसार में रहते हुए सांसारिक उत्तरदायित्वों को, कर्मों को पूरा करते हुए और एक निवृत्ति की ओर, एक जिसको कहते हैं कि एक ऐसे साधना की ओर चलें जहां केवल और केवल आत्म तत्व हो, जो केवल दैवी सत्ता का बोध हो, जिसके कारण हमें शक्ति, इसको एक शक्ति भी कहा गया, ऊर्जा भी कहा गया। इसलिए शाक्त धर्म में इसको शक्ति न मानते हैं, ऊर्जा। धर्म क्या है? एक विश्वास जो जिसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, हमारे शरीर को आगे बढ़ाती है, हमारे समाज को आगे बढ़ाती है, हमारे देश को बढ़ाती है, विश्व को आगे ले जाती है। और यही एक ऐसा तत्व है जिसको गुरु ग्रंथ साहब में भी और सनातन धर्म में भी ये मिलता है कि यही एक ऐसा तत्व है जो संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में बांध सकती है। तो गुरु ग्रंथ साहब में
हमारे गुरु साहब ने ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अभी तक एक ही बात तो मैंने बताया कि मनमुख और गुरुमुख की चर्चा। इसके बाद हम और भी बातें बताना चाहेंगे कि किस तरह से गुरु नानक ने हमें ये शब्द दिए कि भजन में जो बड़ी अच्छी बात बताई कि अकाल मूरत, ईश्वर जो है अकाल पुरुष है। वो काल, अकाल माने जो किसी समय में बधा हुआ नहीं है कि अब आया अब गया, अब आया अब चला जा रहा है। वो अकाल है, कालातीत है, जिसको हम लोग कहते हैं दार्शनिक भाषा में कालातीत है, ट्रांसेंडेंटल है, इंद्रियातीत है। वो उसको हम फेनोमेना में व्यवहार जगत में उतार नहीं सकते। हम यह व्यवहार जगत केवल उसकी छाया मात्र है। अब इस छाया को हम जिस रूप में चाहें समझें, अच्छे अपने सद्गुणों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा अगर हम उसको अच्छी तरह से समझना चाहेंगे तो वो अच्छा दिखेगा। अन्यथा वो फेनोमेना के मैंने विरोधी बातों के रूप में या हमारे जीवन को एक सुगम पथ न दे करके एक दुर्गम पथ की ओर हमें ले चलने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। इसके साथ ही मैं कुछ बातें और बताना चाहूंगा। गुरु की महिमा के बारे में, तो गुरु है कौन वास्तव में। क्योंकि हम लोग नानक देव जी को गुरु कहते हैं और सारे 10 गुरुओं को मिला करके जो है गुरु परंपरा बनती है। वो शायद हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्राह्मणिज्म में जो परम सत्ता के परमात्मा के जो अवतार हैं, वहाँ भी 10 अवतारों की चर्चा मिलती है। तो ये तो अपनी अपनी भाषा है, अपना अपना रूप है। हम जिस तरह से चाहें उसको ग्रहण करें। तो गुरु नानक देव साहब ने उसको इस तरह से समझा कि ये जो गुरु है, गुरु शब्द है, शाब्दिक रूप में तो गुरु का अर्थ ही महान होता है, बड़ा होता है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर गुरु वह है जो हमें या जो जीवबद्ध आत्मा को, देहबद्ध आत्मा को एक प्रकाश की ओर ले, एक ज्योति प्रदान करें। और वह ज्योति कैसे मिलेगी? जब हम उस तरह से अभ्यास करेंगे, उन मान्यताओं को स्वीकार करेंगे जिसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा काम करो। क्या कहा उन्होंने? देखिए, बड़ी अच्छी बात गुरु नानक देव साहब ने बताई कि देखिए 3 मूल बातें हैं। हमें क्या करना चाहिए? अपने सभी दैनंदिन काम करते हुए, सांसारिक व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन जीते हुए नाम जपना, सुमिरन करना। यह स्मरण, यह हमारे हिंदू धर्म में भी भजन के, भक्ति के रूप में लिया जाता है। स्मरण, श्रवण और मनन सब भक्ति के रूप हैं। तो उसको सिख धर्म में केवल सामान्य रूप से, सरलतम रूप में रख दिया कि नहीं, आप केवल नाम जपिए, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सिर्फ इतना ही कहने से हमारे अंदर एक प्रकाश उत्पन्न होने लगेगा, एक ऊर्जा पैदा होने लगेगी। इस तरह से गुरु जो है एक ऐसा तत्व है जो हमें ज्योति प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है। तो एक मार्गदर्शक है, वह लाइट है। वो प्रकाश माने वह लाइट है जो हमें राह दिखलाती है, एक अच्छी राह, जहां हम एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं, एक अच्छा समाज बना सकते हैं, एक अच्छा देश बना सकते हैं, एक ऐसी मानवता को पैदा कर सकते हैं जो हर दृष्टि से, हर प्रकार से समृद्ध होगी। लेकिन मुश्किल है, हमें वह ज्योति मिल नहीं पाती, क्योंकि हम उस तरह से नाम जप कर नहीं पाते। हम दुनिया भर के चीजों में लगे रहते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में। लेकिन अगर एक शब्द भी वाहेगुरु वास्तव में हृदय के अंदर जगा लिया जाए तो हमारा सारा कुछ कष्ट, सारा कुछ दुख समाप्त हो सकता है। और हमें एक संतोष की भी व्याख्या की है नानक देव जी ने, संतोष मिल सकता है। संतोष ही एक
उपलब्धि है, अगर यह उपलब्धि हो जाए तो सारा कुछ उपलब्ध हो गया। तो इस तरह से एक गुरु की व्याख्या करते हुए गुरु साहब ने कहा कि यह शब्द गुरु, गुरु कौन है? वह शब्द है। अब ये दार्शनिक रूप से यह एक साधारण शब्द नहीं है। शब्द को साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं जो बोलते हैं, बोलना केवल शब्द नहीं है। शब्द जिसको कि वो जुडाई क्रिश्चियन ट्रेडिशन में भी कहते थे लोगोस, लोगोस माने भी होता है शब्द। हमारे यहाँ ब्राह्मणिक ट्रेडिशन में भी, तांत्रिक ट्रेडिशन में भी वाक की चर्चा होती है, नाद की चर्चा होती है। यह शब्द है, यह शब्द है जो अकथ है, जिसको कहा नहीं जा सकता। अकथ कहानी के रूप में इसको लिया जाता है। यह ऐसी कहानी है जो अकथ है, जिसको जो कथनीय नहीं है। किस रूप में? हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों के माध्यम से जो कथनीय होता है वो कथनीय नहीं है। वह न बोलने पर भी, न कहे जाने पर भी स्पीकेबल है। है तो वह अनस्पीकेबल, जिसको वेदांतिक भाषा में अनिर्वचनीय कहते हैं, शब्दातीत कहते हैं, उस रूप में। लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा कि नहीं, इतने कठोर मार्ग की ओर नहीं जाना है, हमें उसको केवल उस शब्द को मान लेना है, और वही शब्द जो है हमारा गुरु है, हमें राह दिखलाएगा। तो यह शब्द गुरु जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है गुरु नानक देव जी का, जिसको कि हम आराम बड़े सहज ढंग से, सरल ढंग से उसको ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, एक बातें मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ गुरु नानक देव जी के विचारों से। दया कपाह संतोष सूत, जत गढ़ी सत बट्ट, यह जनेऊ जीव का है तो पांडे धत्त, ना यह टूटे ना यह मल लगे, ना यह जले न जाई, धन्य तू भाड़स नान का, जो गल गले पाई। अर्थात इसको मैं अनुवाद करना चाह रहा हूँ हिंदी में। दया की कपास, कपास कहते हैं रुई को, कॉटन। दया की कपास बना करके, संतोष का धागा, थ्रेड बना करके, उस सूत को सत्य के रूप में लपेटो, इकट्ठा करो, और संयम से संस्कार करके उसे पहने अपने अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं जनेऊ पहने हुए। क्या चीज है भाई ये थ्रेड? क्या है? तो वो है जनेऊ। यदि ऐसा जनेऊ या पवित्र धागा है तो मुझे उसी को पहन, गुरु साहब कहते हैं उसी को पहनाइए, जो न टूटता है, न गंदा होता है, न जला होता है, न जलता है, और न जलाया जा सकता है, न गलता है। नानक कहते हैं कि यही मनुष्य संसार में अर्जित कर ले तो वह सबसे का जीव से बड़भागी या धन्य होता है। इसी के द्वारा वो ज्ञान को अच्छी से पहचान सकता है। इस तरह कैसे गुरु नानक देव ने सहज भाषा में सबको समझाने की कोशिश किया कि हम कैसे कैसे आध्यात्मिक सत्ता का कैसे व्यवहार करें, कैसे हम अपने अंदर पहचाने। धर्म जिसको ब्राह्मणिज्म वगैरह में कर्मकांड के माध्यम से काफी कठिन दुरूह रूप में पैदा रख दिया गया, या तप वगैरह को कितना कठिन कठोर बनाया गया है, और जिसके कारण हिंदू धर्म में काफी अनेक तरह की जो है कुप्रथाएं प्रचलित हो गई। प्रथाओं की ओर हम ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आप सब समझते हो कि अनेक अभी भी बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं हैं, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, जिसको कि हमें साफ करना चाहिए आध्यात्मिकता के जल से, जिसको गुरु नानक देव जी कहते हैं वंड चखना। यहाँ मैं बता दूं कि गुरु नानक साहब ने हमें नाम जपने के साथ साथ दो और अधिक ऐसे महत्वपूर्ण रूपी धारणा दी है, विचार दिए हैं। करना माने मनुष्य कर्म नहीं करना चाहता, माने कर्म करना, और केवल फल ही प्राप्त करना चाहता है। गीता में
कर्म की बात बताई गई, अनासक्त कर्म बताया गया, निष्काम कर्म बताया गया। कर्म करो लेकिन उसके फल की चाह मत करो। यहाँ गुरु नानक साहब कठोर कठोर श्रम की ओर नहीं जाना चाहते हैं, सरल श्रम करना चाहते हैं। कहता है कोई भी काम करो, फिर करना चाहिए। और इसी को हम लोग मानते हैं कि सिखिज्म में सबसे अधिक अगर श्रम की महत्ता का वर्णन किया गया है किसी भी धर्म में, तो वो है सिखिज्म, डिग्निटी ऑफ लेबर। इससे अधिक श्रम की महत्ता किसी अन्य धर्म में नहीं बताई गई है, जो सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में बताया गया। और शायद इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि सिख धर्म का मानने वाला कैसा अधिक कठोर परिश्रमी होता है, शारीरिक श्रम होता है। संभवतः शायद इसी बात को लेकर के महात्मा गांधी ने भी ब्रेड लेबर की चर्चा की थी। उन्होंने जो व्रत, एकादश व्रत बताए हैं कि बिना श्रम किया हुआ भोजन नहीं लेना चाहिए, पाप होता है, उसको सिन की चर्चा की। उसी को गुरु नानक देव साहब ने पहले ही हमको सब हो सकता है कि महात्मा गांधी ने प्रभावित हुए हो इस बात, जो उन्होंने ब्रेड लेबर की बात कही है, वो डिग्निटी ऑफ लेबर, जो कर्म महत्ता मनुष्य के लिए अनिवार्य है। और ये हम हर सिखों के, सिख वह है जो गुरु से सीखा हुआ है, समझा हुआ है, और वो अपना जीवन निर्वाह उसी पर करता है और वो अपना कर्म करता जाता है। बहुत कठोर कार्य भी बड़े आसान तरीके से कर लेता है। इसलिए शारीरिक रूप से भी हम देखते हैं बलिष्ठ होते हैं लोग, और मानसिक रूप से भी होते हैं। कुछ भी कहिए, कहीं भी जाइए, आप बड़े बड़े इंजीनियर्स को देख लीजिए, शोधकारों को देखिए, उसमें आपको तमाम सिख धर्म को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। तो इस तरह से सिख धर्म ने बहुत सहज रूप से ऐसी बातें बताई करनी पड़ती है। मैं एक दो बातें और बताना चाहता हूं कि सिख धर्म एक जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है। केवल मानने, विश्वास करने, करने की चीज नहीं है। इसलिए यहाँ कुछ ऐसी परंपराओं का सूत्रपात किया गुरु नानक देव साहब ने, जो आज तक और अभी हमेशा चलता रहता है, जो कि सभी मानव मात्र को प्रभावित करता है, प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। वो क्या चीजें हैं? वो है संगत, पंगत और लंगर। बड़ा अजीब लगता है कि कैसे यह विचार लोगों के मन में आया। गुरु नानक देव साहब ने किया कि अगर ये व्यवहार आप करोगे, अपने जीवन में प्रयोग करोगे, तो आप गुरु साहब के पास उनके नजदीक जा सकते हो। भूखे को भोजन करना, लंगर, एक साथ बैठ करके भोजन करना, एक साथ बैठ करके संगत करना, अलग अलग कैंप बना करके रहना नहीं, संगत करना, और एक ही पंगत में बैठ करके, एक ही पंक्ति में बैठ करके खाना। ये कोई बड़ा है, कोई एक साथ नहीं बैठ खाएंगे, या एक साथ हम नहीं बैठेंगे। ये जो भेदभाव के भाव थे ब्राह्मणिज्म में, खास तौर से उस दिनों में, उसको तोड़ने के लिए, उसको निर्मूल करने के लिए गुरु साहब ने ये बातें बताई कि संगत, पंगत और लंगर। कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, ये हमें सोचना है। और आज भी हम भी ये देखते हैं कि लोग ऐसे सोचते हैं कि गाय को रोटी खिला दो पुण्य मिलेगा, भूखे को भोजन खिला दो पुण्य मिलेगा। हम हिंदू में इस तरह की बातें कहें, पुण्य की। केवल पुण्य क्या है? एक वर्चुअल लाइफ है, एक हमारा जीवन, हमें संतोष मिल जाएगी, जिसकी चर्चा साहब ने कही, संतोष की प्राप्ति होगी। अगर कोई भूखा रहता है और अच्छी तरह से खा रहे हैं, तो वो एक तरह का पाप हो रहा है। हम अपने प्रति पाप कर रहे हैं और समाज के साथ पाप कर रहे हैं, पूरी संस्था के साथ कर रहे हैं। तो इस तरह से इन बातों की ओर भी हमारा ध्यान गुरु साहब दे रहे हैं, जिसके कारण सिख धर्म को हम जीवन पद्धति के रूप में मानते हैं। और अंत में मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। फिलॉसफी का स्टूडेंट होने के कारण कुछ सवाल पैदा होते हैं कि किसी भी धर्म, दुनिया का चाहे कोई धर्म हो,
उसके उसके दो रूप हमारे सामने आते हैं। एक तो एक्सटर्नल फॉर्म, बाह्य रूप, जो पूजा पद्धति के रूप में होते हैं। विभिन्न धर्मों में अलग अलग तरह से पूजा पद्धतियां हैं, अलग अलग ढंग से उनको जीवन का पूजा स्थान बनाने का विधियां हैं। ये विविधता जो है तो रहेगी, क्योंकि मनुष्य जिस परिस्थिति में रहता है वैसा वह रूप बना लेता है। तो ये एक्सटर्नल फॉर्म्स है, ये सब में एक समान हो नहीं सकता। इस आधार पर हम वसुधैव कुटुंबकम नहीं स्थापित कर सकते। हम विविधताओं को मानते हुए चलते हुए और उसमें एक भाव भाव भगत, जिसको संत कबीर कहा, जगत पैदा करना पड़ेगा। भाव अगर पैदा हो जाए हमारे अंदर तो कोई भी हमसे भिन्न नहीं है, कोई भी हमसे अलग नहीं है। तो इस तरह से ये जो एक्सटर्नल फॉर्म्स है, ये एक रूप होता है, और दूसरा हुआ है इंटरनल फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। धर्म का जो आंतरिक पक्ष है, व्यवहार पक्ष के अलावा जो आंतरिक पक्ष है, जिसको हम सैद्धांतिक पक्ष भी कह सकते हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म है, जिस कह सकते हैं हम आध्यात्मिक रूप है, उसका जो जड़ है, वह हर धर्मों में बिल्कुल असमान नहीं है, एकदम समान है। और उसी आधार पर हम सभी धर्मों के जो प्लुरैलिटी है, बहुलता है, उसको समाप्त करना चाह रहे हैं। शायद जैन धर्म वगैरह में कुछ अनंत धर्म कम धर्म, वस्तुओं के अलग अलग उनके धर्म होते हैं, वो वहाँ धर्म की अलग चर्चा है। वो धर्म का अर्थ ये नहीं, आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि वहाँ स्वभाव के कारण, स्वभाव को लेकर के है। लेकिन यहाँ जो हम धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, और आजकल तमाम बातें देख रहे हैं, धर्म को लेकर के तमाम तरह भी बहुत से युद्ध हुए धर्म के नाम पर, बहुत से तनाव हुए, समाज को बांटने का एक हथियार के रूप में धर्म को प्रयोग किया जाने लगा। बड़ी विडंबना है, ये हम लोगों के लिए एक लज्जा की बात है, शर्म की बात है कि हम धर्म को विभाजित करने के लिए, अलग करने के लिए उस हथियार पर प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनल फॉर्म अगर हम देख रहे हैं, सिद्धांत रूप में देख रहे हैं, तो वही सत्य है। चाहे हम उसको ईश्वर कह लें, चाहे हम उसको अल्लाह कह लें, चाहे उसको गुरु कह लें, चाहे जो जिस भी भाषा का प्रयोग हम करना चाहें, वो क्या कहते हैं उसमें, लाओत्से ने ताओइज्म में उसको वे का नाम दिया, मार्ग। चाइनीज रिलीजन है कन्फ्यूशनिज्म और ये ताओइज्म, वहाँ लाओत्से ने इसको एक मार्ग कहा, जिसको भी हम लोग अपनी भाषा स्वीकार कर लेते हैं। पंथ, सिख पंथ, हिंदू पंथ, पंथ शब्द ठीक है, उसको वो एक रास्ता है, एक मार्ग है। सब लोग अपने अपने ढंग से उस राह पर चल सकते हैं, विरोध हो सकता है। किंतु जो सवाल पैदा करना चाहता हूं मैं, वो यह है कि दार्शनिक दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो एनालिसिस भी हो जाता है जरूरी। क्या धर्म बिना कर्मकांड के संभव हो सकता है? इज रिलीजन पॉसिबल विदाउट रिचुअलिज्म? ये एक बहुत बड़ा सवाल और बड़ा गंभीर सवाल है कि रिलीजन को रिचुअलिज्म से अलग किया जा सकता है क्या, अलग रखा जा सकता है क्या? प्रश्न उठता है, क्योंकि रिचुअलिज्म के कारण ही धर्मों में विरोध देखे जाते हैं। एक बार प्रार्थना करता है, कोई 4 बार प्रार्थना करता है, कोई किसी दिशा में बैठ करके पूजा करता है, कोई किसी दिशा में पूजा करता है, कोई जल ज्यादा उपयोग करता है, कोई ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहता है। इस प्रकार से ये जो रिचुअलिज्म है, विविध पूजा पद्धतियां हैं, अलग अलग उपासना विधियां हैं, ये विधियां हमारी अपनी गढ़ी हुई है। मनुष्य हम अपने अपने ढंग से उसको बना लेते हैं, लेकिन हम उसको धर्म के साथ ना जोड़ें, धर्म को एक अलग तत्व के रूप में मान लें, तो हमारा सारा काम अच्छी तरह संपन्न हो सकता है। रिलीजन
को किसी एक रिचुअल से हम ना जोड़ें, वो उससे परे है, उसके बियॉन्ड रिलीजन। रिलीजन केवल और केवल वह है जो मनुष्य को आत्मिक सत्ता को, व्यवहारिक सत्ता को परमार्थिक सत्ता का राह दिखाता हो, परमार्थिक सत्ता के साथ संबंध स्थापित कराता हो, जिसके कारण अगर यह प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है तो हमारा मन खुला हो जाता है, खुल जाता है, और हम किसी में भेदभाव या किसी में अंतर, बड़ा ऊंचा नीचा, यह इस पद वाला है वह उस पद वाला है, ये यहाँ है ये वो शख्स है, इस तरह के भेदभाव मिट सकते हैं। तो मैं इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहता हूँ कि क्या रिलीजन बिना कर्मकांड के संभव है? मेरी अपनी मान्यता तो बड़ी आसानी से व्यक्त नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मनुष्य कोई भी कार्य बिना किसी सहारा के नहीं करता है। बूढ़ा व्यक्ति भी चलता है तो लकड़ी का सहारा ले लेता है, छड़ी का सहारा ले लेता है। बच्चा भी जब खड़ा होना चाहता है पैदा होने के बाद तो उसके लिए एक सहारे की जरूरत होती है। बिना सहारे के वो बड़ा नहीं हो पाता, बिना सहारे के वो चल नहीं पाता, उंगली पकड़ करके चलना सीखता है। तो ये रिचुअल हम समझते हैं, कर्मकांड एक सहारा है जिसके आधार पर हम की ओर, परम सत्ता की ओर, परम गुरु की ओर, शब्द की ओर हम आगे अग्रसर हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से इन्हीं रूपों में गुरु नानक देव साहब के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनका, इसलिए हम उनके प्राकट्योत्सव को मानते हैं कि ताकि हम उन्हें स्मरण कर सकें, हम उन्हें याद कर सकें। और किसी भी पार ब्रह्म के स्वरूप को अगर हम मनाते हैं, राम जन्म उत्सव मनाते हैं, कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, गुरु का प्राकट्योत्सव मनाते हैं, तो सब में किसी तरह का कोई भेद नहीं है, बल्कि एक ही चीज है जो समय समय पर आती रहती है, और उनको हमें उसी रूप में उन पर प्रयास करना चाहिए और अपने को समर्पित करना चाहिए। इसीलिए हमें बताया गया, गुरु साहब ने भी कहा, शरण में आना। शरण में आने से, गुरु के शरण में आने से सब दुख दूर हो जाएगा। भगवद गीता भी इसी शरणगत की बात कहती है। अगर दुनिया भर के विरोध हैं, अंतर विरोध हैं, तो उन अंतर विरोधों को दूर करने का सबसे सहज मार्ग क्या है? ईश्वर के चरण में मस्तक हो जाओ, झुक जाओ। तो बिना झुके आप मिलेगा, अगर तने रहोगे तो काम होगा, आपको झुकना पड़ेगा। और इसी रूप में हम ये मानते हैं कि मनुष्य परम सत्य के प्रति, गुरु के प्रति नतमस्तक होकर के उनके द्वारा सुझाए हुए मार्गों को, उनके द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चले तो हमारे समाज किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा। और अहिंसा, जिसको कहते हैं परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म, उसकी स्थापना बड़े आसानी से हो सकती है। मनुष्य अहिंसक बन सकता है बशर्ते उसके अंदर यह प्रवृत्ति, यह जागरूकता, यह ज्योति गुरु के द्वारा भर दिया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और इतना कुछ उटपटांग बात हो गई हो तो माफी मांगना चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर कोई बात आप लोगों को कुछ मुझसे कहनी है, कुछ अगर हमसे कुछ आपको लगता है कि एग्जैजरेट किया है, ओवर किया है, तो उसको आप हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका सदैव स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत ही सूचनाप्रद भाषण रहा, बहुत कुछ आपसे सीखने और जानने को मिला। इसी के साथ तब से कहना, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है जी तो प्लीज पूछ सकते हैं। वेलकम। एनी क्वेश्चन? कुछ भी बातें, कुछ तो कहिए, कुछ बोलना चाहेगा किसी न किसी को। कोई नहीं पूछेगा तो चेतन जी ही पूछेंगे। मेरे पास तो सर बहुत क्वेश्चन है। आप अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हाँ प्लीज सर। कोई प्रश्न नहीं है किसी का और दूसरे का? नहीं, कुछ एक आध प्रश्न है मेरा।
अच्छा, तो पहले तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप सर से पहले से मिले हुए हैं। और सर, पहले तो आपको प्रति बहुत बहुत हृदय से आभार। आपको सुन के ऐसा लगा कि जो मेरे भीतर में जो भाव है, ऐसा ऐसा लगा कि मेरे भीतर के भाव को आपने खोल दिया। अरे बाबा, जो धन्यवाद जो धन्यवाद। मैंने बंद रखा है, भीतर में संजो के रखा है, ऐसा लगा कि आपके वाणी से वो एकदम खुल गया है, सारे द्वार खुल गए और वो बाहर आ। ऐसे नहीं लग रहा था कि मेरे शब्द हैं, ऐसे लग रहा था कि आपके शब्द हैं, ऐसे लग रहा था कि मेरे भीतर की बात आप बोल रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत और धन्यवाद। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जी जैसे मैं धर्म को समझता हूँ, जो मेरा अपना समझ रहा है। और ये सर, ये शाश्वत योग सभा की जो शुरुआत है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में योग पढ़ाता हूँ। और वो योग पढ़ाते पढ़ाते, चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, प्योर पॉलिटिकल साइंस स्कॉलर हूँ, लेकिन योग से और ये आध्यात्मिकता से मेरे बचपन से लगाव रही। और मैंने बहुत नजदीक से ये जो धर्म है, जिस विषय पर आपने प्रकाश डाला, उसको रूह को समझने का प्रयास किया। और मेरा रूह भी यही समझता है कि कोई अंदर नहीं। आपने एक्सटर्नल और इंटरनल फॉर्म जो कहा, तो एक्सटर्नल फॉर्म पर तो थोड़ी सी हमें दिख रही है, विविधता है, और वो होगा, क्योंकि समय, कॉन्टेक्स्ट और विचार अलग होते हैं। लेकिन जो धर्म की जो आत्मा है, रूह है, उसमें कोई अंतर नहीं है, मुझे भी कोई भेद नहीं लगता। लेकिन सर, अभी तक यही प्रयास है मेरा, और ये प्लेटफॉर्म भी इसलिए मैंने बनाया कि पहले खुले आम से सबको सुने, क्योंकि कभी हम अभी एक दूसरे को सुनते नहीं, अपना डफरी खुद बजाते हैं। तो शाश्वत योग सभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम एक दूसरे को पहले सुनना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं। और जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम यथार्थता तक पहुंचेंगे नहीं। और ये जितनी भी वैमनस्यता है, वो यथार्थ बोध के कारण है। यथार्थ बोध इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि हमारा जो माइंड है बड़ा कंडीशनल है। हम चाहे धार्मिक विचार हो, चाहे व्यक्तिगत लाइफ हो, चाहे इंटरनल लाइफ हो या एक्सटर्नल हो, बहुत कंडीशनल हमने कर लिया है। तो उन सभी जो कंडीशन हमने बना दिया, उनसे मुक्त होकर, इसको हम बोलते हैं कि योग में कि सहजता से समाधि, कि सभी कंडीशन से आप जब मुक्त हो जाएंगे, जब सहज हो जाएंगे, तो कहीं भी कोई भेद दिखता नहीं।